जब ये सारी बातें होती हैं मुस्लिम वीमेन के बारे में, हर तरह की बातें हम सुन लेते हैं। जो मुस्लिम वीमेन का खुद का जो एक वॉइस है, स्पेशली ऑर्डिनरी मुस्लिम वुमेन का, वो हम नहीं सुनते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने सर्वे किया है 10 स्टेट के अंदर, आप जाके प्लीज पढ़िए। मोर देन 92%, और वो औरतें ज्यादातर बिलो पॉवर्टी लाइन आती हैं जो सर्वे में शामिल हुई थी। 92% औरतों ने बोला है कि वो पॉलीगामी पे बैन चाहती हैं। तो मुस्लिम औरतें ऑलरेडी डिमांड कर रही हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कहाँ है मुस्लिम औरतों की वॉइस। तो उनको मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी पीआईएल लगे हैं, जिनके ऊपर बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो सारी मुस्लिम औरतों ने लगाया है। चाहे वो पीआईएल ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट हो, हलाला के अगेंस्ट हो, वो सारी मुस्लिम महिलाओं ने लगाया। तो वो ऑलरेडी ये लड़ाई लड़ रही हैं। आपको वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आवाज सुनाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम औरतें नहीं लड़ रही हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के एक नए एपिसोड में, और मैं हूं आपकी होस्ट आमना बेगम अंसारी, खालिद बेग के साथ। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week by Amna and Khalid. Today is truly a special episode because this is our episode number 100. So, thank you, gratitude to all to our supporters, viewers, to all these lovely panelists who've been a part of this journey, and together maybe make 1,000 more episodes. And a lot of our ardent viewers, a lot of our supporters, donors have said that, why don't you guys put up a number where we can directly, support you guys? So, yes, we have a number now that's going on the screen. We'll also put it in the link. We also have a UPI ID. We also have a Patreon account, which a lot of our US viewers have asked for. So that's there as well. You can become a channel member and support us. Again, gratitude. We are very happy. After 1.5 years, we are on episode 100. And today also we believe that it's so perfect to have this episode because to have Tahir Anwar, to have Dr. Faiz Ahmed Faizi, to have Zeba Zoria, to have Umar Ghazi, and the first time making debut, Amber Zaidi, who needs no introduction. She's a very well-known TV panelist and has her own show as well. So, welcome, Amber. Thank you so much, Khaled, for having me on your show. Right. So, they keep telling us progressive, rationalist, secular, patriotic Muslims don't have the numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Consider a few thousand lakhs whom we represent. We don't claim to represent crores. So want to start off immediately what this, as you can see the name of the episode, it is about the Uniform Civil Code, something which has been in the conscious of our country for decades now. I want to start with Dr. Faiz Ahmed Faizi. Faizi Saab, we saw a speech by the Prime Minister in which he said, how can there be two laws in the same country? His exact words, I'm quoting him, today people are being instigated in the name of UCC. How can the country run on two laws? The constitution also talks of equal rights. Supreme Court has also asked to implement UCC. Those opposing it are playing vote bank politics. तो फैजी साहब आपसे शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं कि ताकि लोग एजुकेट हो, बिकॉज बहुत सारे फोर्सेस उनको गुमराह कर रहे हैं, कि आप अगर हमारे दर्शकों को समझाए कि यूसीसी क्या है और क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जी फैज साहब। देखिए, यूसीसी की जहाँ तक बात है, ये संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका पार्ट है। और जो संविधान सभा की बहस थी उसमें उसी में ही इसको तय करने की बात थी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से वो नहीं हो सका। तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया कि आने वाली सरकार इसका प्रयास करेगी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसमें लगाया जाए। जो फैमिली मामले हैं, शादी ब्याह है, संबंध विच्छेद है, उत्तराधिकार का मामला है, विरासत का मामला है, या संपत्ति के बंटवारे का मामला है, उस पर एक यूनिफॉर्मिटी हो। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान ही कह रहा है, तो विरोध इसका नहीं होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है कि नहीं लाना है। इस पे सारे लोगों को सहमत होना चाहिए कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध संविधान का विरोध है, सीधी सी बात है, चाहे आप जिस आधार पर विरोध करते हैं। दूसरी चीज, हाँ, इसके कानून कैसे तय होंगे, किस कानून में क्या बात होगी, उसके लिए एक राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए, जैसे संविधान सभा में बहस हुई थी के कानून के लिए। तो एक खुले दिल के साथ इस पे बहस। I think we've lost Faizi Saab. He'll join in later.
Tahir, I want to get you in, continuing with, अगर आप सरल भाषा में समझाएं कि यूसीसी क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने समझा ही दिया कि आर्टिकल 44 का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो यूसीसी क्या है ताहिर, और is it anti-Sharia, anti-Muslim, anti-Islam as All India Muslim Personal Law Board and other religious groups within Muslims are saying it? तो ताहिर, इन दोनों चीजों पे अगर आप रोशनी दे। देखिए, अभी जो फैजी साहब ने कहा यूसीसी वो संविधान का ही एक हिस्सा है और उसको रखा गया था कि बाद की जो भी सरकारें आएंगी वो उसको आगे ला करके इम्प्लीमेंट करेंगी, तो उसका विरोध संविधान का विरोध है और मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो यूसीसी का विरोध नहीं करना चाहिए। यूसीसी में क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर एक अलग डिस्कशन होना चाहिए और वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके ऊपर क्या बातें होंगी वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका विरोध जो है वो देखा जाए तो संविधान का ही विरोध है। और जो आपने जो दूसरा क्वेश्चन रखा है कि क्या ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है, तो इस्लाम जो है वो दो तरीके से उरूज में आया है। एक तो इस्लाम की जो बात है वो ये है कि वो आपके ऊपर एक मजहब लाता है और वो मजहब बताता है कि आपको क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो करने हैं, जिसके बेसिस पे आपको जन्नत या जहन्नम मिलने वाला है। ये फेथ है उसके अंदर में, जो इस्लामिक क्रीड है उसके अंदर में। दूसरी बातें जो है, इस्लाम जब गलबा हो गया था तो उसकी एक हुकूमत कायम हुई थी और हुकूमत के अंदर कुछ कवानीन आए थे जिसके बेसिस पे वहां पर फैसला किया जाता था। तो वो जो मामला है वो इस्लाम का पार्ट उस तरीके से होता है जब इस्लाम की हुकूमत होती है। जब इस्लाम की हुकूमत नहीं होती है तो इस्लाम सिर्फ आपकी इबादत के ऊपर ही होता है। लेकिन जहां पर आप एक ऐसी मेजोरिटी के साथ रह रहे हैं जो कि इस्लाम में यकीन नहीं करते और वो लोग सेकुलर हैं या वो लोग किसी और फेथ में मानते हैं, तो वहां पर फिर इन कवानीन की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। आप देख सकते हैं कि ज़कात का मामला जो इस्लाम में बताया गया है वो स्टेट के हवाले से है कि स्टेट जो है वो ज़कात को कबूल करेगा। एक इंडिविजुअल ज़कात आज निकालता है वो टेम्पोररी चल रहा है मामला, लेकिन जो ज़कात का मामला है वो स्टेट के हवाले से होता है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो कबूल करती है। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा मामला है नहीं। हिंदुस्तान में तो सभी लोग इंडिविजुअल तौर पे ज़कात निकालते हैं। तो इसीलिए इस हिंदुस्तान में रहते हुए आप ये कहें कि हम इस्लामी कवानीन के साथ जीना चाहते हैं, ये इस मेरे ख्याल से जो मेरी जो समझ है इस्लाम को लेकर के, वो अपने आप में मुतजादी है, इस्लाम से टकराव पे। जी खालिद। I want to expand this question and get in Amber. Amber, even when we speak about Sharia, so Sharia laws in Indonesia are different from what they are in UAE, are different from what they are in Turkey, to Pakistan, Bangladesh. तो जब ये कहते हैं कि it's anti-Sharia, तो it doesn't logically add up, right? I mean, if you could tell us, like, how is Sharia different everywhere? So how can they say this is against Sharia and it clashes with the religious communities, जो कि All India Muslim Personal Law Board कह रहा है? See, when we talk about Sharia, Sharia is something which is not sacrosanct. We can absolutely change as per the needs and as per the timing and the requirements of the country and society. And when we talk about India, India is a secular democratic republic, and Uniform Civil Code is a proposal in India that is aimed at replacing personal laws based on religions, custom, traditions, and so on, and irrespective of, and it aims to introduce and enforce a similar set of law for everyone irrespective of caste, creed, gender, and everything. This is largely what is the idea of Uniform Civil Code in India, and it is very much constitutional, as you earlier asked to Fayazji. It is constitutional as it is being introduced in Part 4 of Constitution, and the directive principle of the state policy. It says that the state of India should have uniform civil code and uniform civil set of laws for everyone, and it is still not impossible in courts and in different parliament assemblies. It has been said that India should have uniform civil code law. Also, many times Supreme Court has asked the governments to implement Uniform Civil Code in 1985 in Shah Bano's case when elderly women went to the court to seek justice, to take some, maintenance, to seek maintenance from her ex-husband, and luckily she got justice, but she was failed back then in 1985 with a lot of lakhs of Muslims gathered at India Gate, and
the government, they had to take back when the courts, whatever the court's order, and then she was failed back then, like more than 3 decades ago. And repeatedly in many cases like Salah Muddal case and many other cases in 2015, 95, and also in 2019. Many times Supreme Court has asked governments to implement Uniform Civil Code, but it hasn't been imposed and implemented in India. And I want to say one thing also, Khaled. We have a uniformed criminal code procedure. We have, Tahirji was talking about tax, zakat is a tax, kind of tax in Islam. We have uniform tax laws in India. When it comes to CRPC and tax laws, we all are following uniform laws, uniform set of laws, irrespective of our gender, caste, creed, and sexual orientation. But when it comes to personal laws, we say that it hurts our religious belief system, and it will affect our tradition and what so on. So this is all bullshit. We should accept that we are living in a democratic republic, and we all, as constitution says, constitution ensures equal right to everyone. Article 14, which ensures equal right to everyone irrespective of gender, caste, creed, and all. Also, when we talk about uniform civil code, so many people, in fact, Osaduddin Owaisi and many Islamic leaders, I would say Islamic or Muslim leaders, they are opposing uniform civil code by saying it will hurt our sentiment, and a uniform civil code is being introduced just to humiliate Muslim and whatnot. And also uniform that India Muslim Personal Law Board is fighting in our court. See, I've been fighting in courts for more than 5-6 years for uniform civil code. I filed petition in Delhi High Court in 2018, and we have been fighting to seek justice for women of this country. As I said earlier, and also in my petition, my prayer was that as a constitution ensures equal right for everyone, women of this country, irrespective of religion, because if it comes to Hindus, Sikhs, Christians, and other Parsis, their laws, personal laws are codified. And when it comes to Muslim community, our Sharia law is not laws are not codified. So when any Muslim lady, they goes to the court or file a petition to seek justice, then a challenge comes before the court. They say CRPC prevails or personal law prevails. Their personal law prevails, and women of this country are being failed again and again because of this. So our prayer is that we seek justice as per the constitution, that we all deserve equal right. And having said that, I think everybody agrees with that we should not oppose by saying that it will hurt our sentiments or whatsoever, because it's not about religion. It's just about equal rights, and we all should seek justice for that. Thanks, Amber, for that. I want to get Zeba in here. Zeba, you're a law student, and Amber spoke about, Asaduddin Owaisi saying that he's going to protest it. His argument is that India's PM considers India's diversity and its pluralism a problem. So he says such things. Maybe India's Prime Minister doesn't understand Article 29. Will you strip the country of its pluralism and diversity in the name of UCC? What is the Article 29 Mr. Owaisi is referring to, and is that actually getting, like, the government's going against that? What is Mr. Owaisi's argument? So what OSCE has said primarily pertaining to the right of preserving one's religious identity, and the same being protected under Article 29 of the Constitution. So far as the plea of Muslim identity is concerned, it is nothing but a relic of the two-nation theory, which was asserted by the Muslims political leader to carve out a separate state for the Muslims on the basis of their religion. On the other hand, the nationalist Indian leaders all along urged that there was only one nation vis-a-vis Indian, and after the communalist Muslim went away on the partition, there was nothing to stand in the way of proclaiming
in the very preamble of the Constitution of the independent India, that the goal of India was one nation united by the bond of fraternity. There should not be any apprehension of losing their identity when the same constitution guarantees to the minority the maintenance of the institution essential to their religion, language, culture in Article 26, 29, 30, 31A, and even after the partition of India, the Muslims who preferred to remain in divided India, instead of moving to their homeland, knew very well what they could get from the secular government of India. There was no covenant with them that they could be allowed to demand more and more to serve the communal interest. To cry for more after nearly half a century is nothing but a resurrection of the slogan Islam in danger, which led to the partition of India. Interestingly, OSCE also mentioned with regards to the identity and the rights of the tribal community. I would like to point out that the Supreme Court's judgment in Madhukishwar versus State of Bihar, wherein which they regarded which was in regard to tribal women, the court and other inheritance law, which the court recognized the laws as patriarchal, declined to give a very general direction regarding customs and other inheritance law, which discriminated women, and the court protected the rights of women by suspending the exclusive rights of male succession till the women choose other means of livelihood. So that is my comment on with respect to this question. Thanks, Zeba. I want to get Faizi ji again here. Faizi ji, again coming back to the same argument that All India Muslim Personal Law Board कह रहा है ये एंटी इस्लाम है, एंटी शरिया है और एंटी मुस्लिम है. हालांकि हमने देखा कि जो पासमानदा महाज की सबसे बड़ी बॉडी है उन्होंने वेलकम किया है यूसीसी. तो एज अ पासमानदा, एज समवन हु इज एन आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट टू ओएसी एंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप इस चीज को कैसे देखते हैं जब वो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ? ये बिल्कुल, ये मेरी आवाज सुनी जा रही है? जी जी, ये बिल्कुल झूठ बात है. देखिए, ये बिल्कुल झूठ बात है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आप जानते हैं कि अशराफ क्लास ही है, उसमें से एक सैयद लोग ही हैं, और इनका एक इतिहास रहा है, झूठ बोलने में माहिर रहे हैं. एंटी इस्लामिक और नहीं है, ये एंटी अशराफिकल तो जरूर है, क्योंकि अशराफ का जो कल्चर है, बहुविवाह का कल्चर है, और भी जो अरबी ईरानी उनका कल्चर है, उससे भारतीय कल्चर मैच नहीं करता है. इसलिए ये लोग वो अपना उसमें फ्रीडम चाहते हैं अपने फैमिली मामले में, ट्रिपल तलाक हो चाहे वो हो, तो वो फ्रीडम चाहते कि बरकरार है. इसके लिए वो इस्लाम का सहारा लेते कि इस्लाम, जब कोई चीज को आप एंटी मुस्लिम कहते हैं तो उसमें 90% पसमानदा भी इंक्लूड हो जाता है. तो ये एक दुष्प्रचार है, शुरू से दुष्प्रचार रहा है कि यूसीसी आ जाएगा तो हम अपने मूर्तों को दफन नहीं कर पाएंगे, टोपी नहीं पहन पाएंगे, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे. कि अभी पसमानदा विमर्श मुस्लिम समाज में जो सामाजिक न्याय की बात है, इतना इस वक्त स्वयं प्रधानमंत्री उसको एड्रेस कर रहे हैं. उसके बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग की, उसमें भी जो ड्राफ्ट बनाने की बात की, उसमें किसी पसमानदा नुमाइंदगी की बात नहीं किया, जो पसमानदा प्रतिनिधि की बात नहीं किया, और ड्राफ्ट बना भी लिया जहां तक मेरी जानकारी है. उसमें किसी भारतीय मूल के मुसलमानों को राय मशवरा करना समझा नहीं. इस तरह से खुलेआम इनजस्टिस, जो धर्म मसावात की, बराबरी के जस्टिस की बात करता है, उसी धर्म को आप ला के इनजस्ट करेंगे तो आवाज उठनी है. तो इतना कहने के बाद भी इतनी दृढ़ता है इन लोगों के अंदर, इतनी बेईमानी है इन लोगों के अंदर, इतना झूठ है इन लोगों के अंदर कि पसमानदा प्रतिनिधियों से बात करना मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनका सुख दुख क्या है. जैसे मैं एक बहुविवाह बताता हूँ कि पसमानदा कल्चर में नहीं, जैसे हिंदुओं कल्चर हमारे यहाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमारा बहनों कोई दूसरी लड़की लिया है या हमारी माता की जो कोई दूसरी है, लेकिन अशराफ वर्ग में ये बहुत ही कॉमन है. वहाँ जवान लड़का अपने बूढ़े बाप के बाल को कलर करा के दूल्हा बना के ले जाता है, अपने बाप के लिए लोग रिश्ता ढूंढते हैं, एकदम ही आम बात है. तो कल्चर के डिफरेंस है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. ये फर्क है. तो वो इसमें क्रिमिनलाइजेशन नहीं चाहते, वो चाहते एज इट इज जो मिडिवल एज का कानून चल रहा है वो चलता रहे. इसके लिए वो बलि का बकरा पसमानदा को बनाते हैं. ये आपकी सवाल का जवाब. दूसरी देखिए, ये जो धर्म मानने की आजादी है संविधान के अंदर, खूब इसको अच्छे से आप समझिए. आर्टिकल 29 हो या कोई भी आर्टिकल हो, देश एक सेकुलर देश है, सेकुलरिज्म पहले
I think we've lost Faizi Saab again. So I'll just take the question to Umar. Umar, want to understand from you. There are a lot of myths regarding once UCC is implemented. मैंने तो एक वीडियो ऐसा भी देखा, किसी ने कहा कि सबको एक ही कपड़े पहनने पड़ेंगे हिंदू मुस्लिम. Maulana from All मैं India सुना Muslim दे रहा हूँ. yesterday said, अरे हर मुसलमान औरत को फेरा लेना पड़ेगा. On TV he's lying. So they are just instigating people so that they can save their shop, which is called All India Muslim Pass Law Board. For them it is a matter of existence. Umar, so want to understand from you if you could explain ki what are the benefits which will happen to Muslim women and Indian women in general, and what is the most funniest myth that you've read? Like मेरा सबसे funny था कि मैंने एक वीडियो देखा जो वायरल हो गया था. मौलाना साहब कह रहे थे कि अब सबको एक ही जैसे कपड़े पहनने हैं. So if you could tell us those two things. Freedom of expression. Okay, so freedom of expression. So first of all, I would say that this demand, this prospect of UCC is nothing new. It does not exist in a vacuum. There is a very large historical context to it, right? So before I come to the question, I just want to make this point that the partition was a very bloodied partition, and it happened between two thought processes, right? The one thought processes was who wanted to be governed by a theocracy. They got up and left. The other people who did not want to be governed by a theocracy, they remained. So these are the two thought processes, and we have to choose one of them. Now, when we are living in a country that is not governed by a theocracy, we will have to follow the directive principles, the lines and angles of what a secular democratic country looks like. ये कन्वीनियंट पोजीशन हम नहीं ले सकते कि हम सेक्युलर कंट्री के फ्रेमवर्क में रहेंगे लेकिन हम अपने थियोक्रेसी से रूल्ड होंगे. ठीक है, दैट इज अ वेरी कन्वीनियंट पोजीशन दैट हैज बीन टेकन. इवन विद इन द थियोक्रेसी एक और कन्वीनियंट पोजीशन है कि हम क्रिमिनल मामलों में गवर्नड नहीं होंगे और सिविल मामलों में गवर्न होंगे. तो ये कोई इट्स नॉट अ गेम दैट वी कैन प्ले with the majority community. We have to be very clear that what is our principled stand. ठीक है, stand principle पे लिया जाता है. Another proposition that some people say is that we do not have a draft of the UCC. So right now we are not debating on the draft. First of all, we are debating on the principle, and everybody knows what the principle of UCC is. It is already written in the constitution. So that is the second point that I just wanted to make clear. Now third, talking about women, as Khalid said, there will be some benefits to the Muslim women. Of course, there will be benefits to the Muslim women because there are certain interpretations of different faiths that are at loggerhead with the modern human rights values. ठीक है, and they are in all religions. इस्लाम में कोई ऐसी खास चीज नहीं है. They exist, right? In Hindu religion, in all other religions, there are certain practices. Of course, for thousands of years, we are growing as a society. We are evolving as a society, and the UDHR, Universal Declaration of Human Rights, is something that is a culmination of that process. कि human rights का मतलब क्या है? तो अगर कोई भी ऐसी practice है, कोई भी ऐसा interpretation है of any faith, irrespective, that will be questioned based on the modern human rights values, and that is the benefit of living in a secular country like India. यही benefit है, and especially Muslim women have to understand that, and a lot of the women are actually understanding it, which is a good thing. Now coming to the myths, like Khalid said, मुझे तो जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है यूसीसी के अगेंस्ट, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ लगता है. सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो ये लोग देते हैं who are against UCC, they see कि इससे इंडिया की प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को खतरा है. ठीक है. Now, I want to ask a basic question. Muslims are being governed by a different set of laws. Hindus, Jains, Parsis, and right, all others are governed by under a certain set. क्योंकि वो हिंदू जो बिल था वो codify हो गया था, right? So, do we see the diversity disappearing completely? Can't we differentiate a Hindu from a Parsi or from a Jain or from a Sikh? Absolutely. क्या हम रोड पे निकलते हैं यूसीसी की वजह से हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते? तो ये जो पूरा आर्गुमेंट है, इट इज कंप्लीटली बेसलेस कि उससे हमारी डाइवर्सिटी को बहुत खतरा है. डाइवर्सिटी को कोई खतरा नहीं है, प्लूरलिज्म को कोई खतरा नहीं है. सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को खतरा है जो कुछ रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं.
And also one important point, All India Muslim Personal Law Board has taken exception to this कि हमें ये पसंद नहीं है. Now we should not be debating कि All India Muslim Personal Law Board ने क्या कहा. We should be debating All India Muslim Personal Law Board क्या है और क्यों है. Of course, that is a very important point, Umar, you have made, because All India Muslim Personal Law Board is just an NGO, got registered in 1973 and Exactly. supported by. Is it a democratically elected people? Did I vote for them? Is it a secular institution? Is it in line with the secular framework of the country? Who are these people? I don't even know. I don't even know their names. I don't want to know their names, and I don't even want to know what they stand for, because they don't speak for me. I can say for myself, they don't speak for me, and they don't speak for the majority of Indian Muslims. So I would say that we have to take exception to them. Right. So that's what I have to say. Right. I want to get you, Amna, because today itself in print you wrote an article in which you challenged All India Muslim Personal Law Board's arguments, and you educated viewers that what they are. Now their argument is that polygamy, nikah halala, and other such practices, ultimately they say that they should not be touched, right? So your viewpoint on, as of now, with a uniform civil code not being there, what is it that Muslim women in particular have a disadvantage? I understand inheritance laws are against them, and then again polygamy is a problem, nikah halala. Will they then get relief from all these things once UCC is there? Yeah, that's a given, because UCC जब आएगा तो उसका जो बेस होगा वो कोई भी डॉक्ट्राइन के बेस पे होगा ही नहीं. UCC which the UCC का implementation basically human rights के जो already defined principles हैं उनके बेस पे होगा. So like most of the time we can see कि हिंदू जो बिल कोड है वो बहुत हद तक रिफॉर्म हो चुका है यूसीसी के डायरेक्शन में. स्टिल पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुछ चीजें और हैं. लाइक समटाइम आई फील कि जो डिवोर्स का प्रोसीजर है हिंदू लॉज में वो कॉम्प्लेक्स है. दैट कैन बी उसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है. एंड इंडिया में जो डिफरेंट लॉज हैं, लाइक अगर आप ज्यूज के लॉज में भी जाएंगे तो सेम वे में ज्यूज के अंदर भी विमेन को जब भी डिवोर्स चाहिए तो वो आदमी जो होता है, मैन होता है, उसके पास ही अथॉरिटी होती है उसको डिवोर्स देने की. एंड ये इशू इनफैक्ट इजराइल में भी है. दैट फाइट इज गोइंग ऑन विद इन द इजराइल, जहाँ प्रोग्रेसिव जो वैल्यू रखते हैं इजराइल के लोग वो, और जो कंजर्वेटिव हैं वो, उसके बीच में उनके बीच में ऑलरेडी एक बहस चल रही है, इसको लेकर के फाइट चल रही है. क्रिश्चियंस में डिवोर्स बहुत ही मुश्किल है ना, आप ले ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है एक विमेन के लिए लेना. पारसी में अगर लड़की अपने सोसाइटी से बाहर शादी कर लेती है तो उसका हक खत्म हो जाता है, जो जनरेशनल वेल्थ है इनहेरिटेंस में है. तो आप देखेंगे कि जो इंडिया में इतनी सारी जो अलग अलग समुदाय हैं उनमें किसी न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है. बट जब बात मुस्लिम महिलाओं की आती है उसका मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि बाकी फिर भी जो जितने पर्सनल लॉज हैं वो थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ नहीं लगाया गया था आज तक. एंड जब आप ये देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इट्स फार मोर टू डू देन बिलीविंग इन सर्टेन प्रिंसिपल्स कि हम शरिया को अपहोल्ड कर रहे हैं. उससे ज्यादा ये एक तरह की जिद है और एक आइडिया है जहां पर लगता है कुछ इंटरेस्ट ग्रुप को कि अगर हमने ये अलाउ कर दिया रिफॉर्म करने को, स्टेट को इंटरफेयर करने को, तो जो हम अपहोल्ड रखते हैं मुस्लिम के नाम से, इन सर्टेन काइंड ऑफ पावर रखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी पे, वो हमारे हाथ से चला जाएगा, बिकॉज अभी स्टेट इंटरफेयर करने लगा है. तो जब मैंने आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने एग्जामाइन किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहुत आर्ग्यूमेंट जो होता है बेसिकली इंडिकेट करता है कि इंडियन जुडिस सिस्टम को हक नहीं है शरिया इंटरप्रिटेशन करने का और शरिया को लागू करने का. अगर हम मतलब बाई शरिया भी जाएं तो वो हक इंडियन कोर्ट को नहीं है. हम पैरेलल शरिया कोर्ट लगाएंगे और वहां पे आप जाइए और वो हमारे पास ही ये हक रहेगा. तो इससे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि इनकी लड़ाई सिर्फ शरिया की नहीं है, इनकी लड़ाई बहुत हद तक अपने पावर को, अपने इंटरेस्ट को गेन करने की है. क्योंकि जब ट्रिपल तलाक का भी केस हुआ था तो ऐसा नहीं है कि ट्रिपल तलाक सिर्फ इंडिया में ही हटाया गया. मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो कंट्री हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, एक लिस्ट दे दूंगी मैं जहां पे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन किया जा चुका है. तो यहाँ वो इतने क्यों पीछे पड़े थे? क्योंकि उनका डर ये था कि एक बार
अमेंडमेंट हुआ, एक बार रिफॉर्म हुआ, तो स्टेट अगेन एंड अगेन जो है इंटरफेयर करेगी। वो इंटरफेरेंस उनको नहीं चाहिए। जो उनको एक एनजीओ है जिनको कि लीगल कोई अथॉरिटी नहीं है अपने एक्शंस को इन्फोर्स करने का, उसके बावजूद जो वो इन्फ्लुएंस एंजॉय करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उसके बावजूद जो पावर वो एंजॉय करते हैं विदाउट हैविंग अ पावर, लाइक खाप पंचायत की कोई वैलिडिटी नहीं है, बट एक बार खाप पंचायत बन जाता है और जब उनको समझ में आ जाता है कि हम तो इतना एक गांव के अंदर अपना असर्ट कर सकते हैं अपने फोर्सेस को या जो भी, हाँ, तो वो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सेम चीज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये एक्चुअली बना कब था, इनका एग्जिस्टेंस कब आया था। 73 में अडॉप्शन बिल जब आया था, जो कि इनको लगा क्योंकि अडॉप्शन बिल एक यूसीसी का ही एक हिस्से के तौर पे आया था जो सबके ऊपर बराबर लागू होता, और मुस्लिम्स में अडॉप्शन होता नहीं है, वहां से इनका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था। वहां से उलेमा, बेसिकली ये मुस्लिम कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप मेजोरिटी ऑफ इनके मेंबर्स देखोगे तो ये जो उलेमा है, मौलवी हैं, इन तरह के लोग हैं, ये लोग साथ में आकर के इन्होंने ग्रुप बनाया और इन्होंने बोला कि हम सारे मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। किस मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए? जब आप आधी आबादी को इतना सब्जुगेट करते हो तो कौन सा मुस्लिम इंटरेस्ट है, पता नहीं। अपार्ट फ्रॉम जो मुस्लिम विमेन के अगेंस्ट इनका डिस्क्रिमिनेशन है वो तो है ही। एक बहुत ही फनी बात जो मुझे लगती है कि ये जिन चीजों में ये इंटरफेयर करते हैं, यानी पर्सनल लॉज, वो सबसे ज्यादा औरतों को अफेक्ट करता है। और ऑल इंडिया मुस्लिम ये पर्सनल लॉ बोर्ड में औरतें थी ही नहीं। एक भी नहीं। 2015 और 16 के अंदर जो है इन लोगों ने पहली मुस्लिम महिला विंग बनाई, जिसके अंदर टोकन के नाम की 25 औरतें थी। अभी अक्टूबर 2022 में उसको जो है हटा भी दिया। फिर जब क्रिटिसिज्म आया है तो फरवरी 2023 इस साल में जो है वापस उसको लेकर के आए हैं कि नहीं नहीं हम रिस्टोर कर रहे हैं। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जो औरतें वहां की विंग है उनकी औकात भी क्या है, जब मन अब किया आप तब। एक बात मैं आपके इसी इंसिडेंट से एक इंसिडेंट जोड़ना चाहती हूँ जो आपने विमेन विंग की बात की। शाइस्ता जरूर। अंबर को आप सब जानते होंगे, जब हम लोग ट्रिपल तलाक पे लड़ाई करते थे, वो एक्चुअली एक वक्त पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विमेन विंग की हेड हुआ करती थी, और उनका डिसएग्रीमेंट हुआ ऑन द मैटर ऑफ ट्रिपल तलाक, और उन्होंने छोड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अपना अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो इनका डिसएग्रीमेंट है महिलाओं के साथ, इनका डिसएग्रीमेंट है और दूसरे फिकों के साथ, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा एक शिया ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। तो अब इतने फिके हैं, वो किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली, अपना पर्सनल गेन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट इज दैट्स इट। तो उसी से आगे मैं मतलब खत्म कर रही हूँ अपनी बात इसी पे। तो मतलब महिलाओं के जिंदगी में सबसे ज्यादा इनका अफेक्ट होता है जिस चीजों के बारे में ये बात करते हैं, बट महिलाएं कहीं पे रिप्रेजेंट होती ही नहीं है। प्लस डीपली कास्टिस्ट एंड क्लासिस्ट, बिकॉज इनके जो मेंबर हैं वो काफी अच्छे सोशो इकोनॉमिक्स सात्रा से आते हैं। नॉर्मल ऑर्डिनरी मुसलमानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर अशराफ हैं, एक दो पाशमानदा नाम भी देखे हैं मैंने, बट ऑब्वियसली वो भी टोकन के लिए ही होंगे। मतलब उनकी जो माइंडसेट होता होगा वो तो अशरफियत से आता होगा इंस्टेड ऑफ पाशमानदा के। तो इसके अलावा अ फ्यू मोर फनी थिंग, जब ये बोलते हैं कि हम मुस्लिम के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, उसी टाइम ये राइट टू एजुकेशन को भी अपोज करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि राइट टू एजुकेशन अगर मुसलमानों में आएगा तो मदरसे बंद हो जाएंगे। तो इतना भला ये मुस्लिम कम्युनिटी का चाहते हैं, एंड अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो बने हुए हैं कि हम ही मुस्लिम्स की आवाज हैं। कहाँ से? ना तो किसी ने आपको वोट दिया है, ना तो आप इलेक्टेड हो। वो वैसे ही एक पल को बोलता है तो मुझे समझ में आता है कि वो इलेक्टेड बंदा है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बिकॉज यूपी में उसको कोई वोट नहीं देता है। यूपी में उसको ज्यादातर जो है जमानत जब्त हो जाती है उसकी, लेकिन कहीं से तो वो रिप्रेजेंट करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आकर के एक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं, और इससे उसको बहुत फायदा मिलता है। यूसीसी अपोजिशन वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी खुद की एग्जिस्टेंस बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है यूसीसी के अगेंस्ट में, शरिया के इम्प्लीमेंटेशन में। Amna, I want to take this question to Tahir and continue with that. Tahir, जो आर्टिकल आज आमना ने प्रिंट में लिखा है उसमें आमना ने आर्ग्यू किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये आर्ग्यू करती है कि शरिया डिवाइन है और नेसेसरी है मुस्लिम की आइडेंटिटी के लिए,
लेकिन आमना का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि उस डेफिनेशन से तो फिर जो मुसलमान सेक्युलर मुल्कों में हैं वो तो सेक्युलर लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो मुसलमान ना रहे। तो उस लॉजिक से तो वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इस्लामिक स्कॉलर लाइक यू कि शरिया के कुछ अगर आप डिफरेंसेस बता दे इंडोनेशिया में, यूएई में और इंडिया में, हाउ इट्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, और ऑल्सो इन द फैक्ट जो ऑल इंडिया का आर्गुमेंट है, आपका काउंटर आर्गुमेंट क्या है उसको लेके। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इस्लाम जब आया तो वो पहले मक्की जिंदगी जो है रसूल अल्लाह की, उसमें पूरा का पूरा जोर तौहीद के ऊपर था, अखलाकियात के ऊपर था, इंसानों को बनाने के ऊपर था। वहां पर इंसानों को बनाया गया इंसान, वहां पर ईमानदारी सिखाई गई, सच्चाई सिखाई गई, दूसरी कौमों के लिए इज्जत सिखाई गई। अल्लाह के रसूल जब ताइफ में गए थे तो उनको पत्थरों से वहां पर मारा गया था। तो कहा जाता है, रिवायत में आता है कि फरिश्ते आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इस कौम को हलाक कर देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह ने मना किया, कहा कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं भेजा गया हूँ। तो वो चीजें जो है वो असल इस्लाम है, वो इस्लाम का असल हिस्सा है। उसके बाद जब वो मदीना में शिफ्ट हुए तो मदीना में अब चूंकि बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, उनको अपना हुक्मरान मान चुके थे, उनको अपना खलीफा मान चुके थे, तो उन्होंने एक स्टेट इस्टेब्लिश किया। और फिर आप देखेंगे कि जो भी कवानीन उतरे हैं सूर्य निसा के अंदर में या सूर्य नूर के अंदर में, जो भी कवानीन आपको मिलते हैं वो सारे के सारे कवानीन मदीना के, मक्का के जो भी मक्की आयात हैं उसमें आपको ऐसे कवानीन नहीं मिलते हैं। तो वो सारे मामलात जो हैं वो स्टेट से रिलेटेड हो जाते हैं, और वो तब होता है जब सारी की सारी हुकूमत जो है वो इस्लाम की हो और सारे लोग मुसलमान हो, तभी आप इस चीज को उनके ऊपर नाफिज कर सकते हैं। अदरवाइज आप, एक ऐसी टुकड़ी है जहां पर कुछ लोग किसी और कौम के हैं, कुछ लोग किसी और कौम के हैं, तो वहां पर आप इस चीज को इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब ये कहते हैं कि शरिया का पार्ट है, तो शरिया के पार्ट में जो हम, जैसा कि अभी सारे लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं और मैंने भी एक बार पहले भी कहा था कि जो हमारे ताज़ीरात हिंद है, आईपीसी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो मामलात है वो कुरान में भी ऐसी चीजें बताई गई हैं। तो वो तो, अगर शरिया का मामला है तो फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। वहां पर भी अगर किसी के साथ रेप हो गया है तो उसको 4 गवाह ला के दिखाना पड़ेगा, और अगर किसी ने जिना किया है तो उसको 100 कोड़े लगेंगे कुरान के हिसाब से, अगर शादीशुदा है तो हदीस के हिसाब से उसका पत्थर से जो संगसार किया जाता है वो उसका मामला होगा। अगर किसी ने चोरी की है तो कुरान के हिसाब से उसका हाथ कटना चाहिए। ठीक है। तो अगर शरिया का मामला है तो सिर्फ वो मामलात जो आचार संहिता में आते हैं वो क्यों शरिया में आ रहे हैं? दंड संहिता भी तो आएगा ना। कुरान में तो सारे के सारे चीजें बताई गई हैं, अहादीस में ऐसा करके दिखाया गया है। तो ये जो मुनाफिकत है कि हम पार्ट ऑफ द थिंग्स को अपना लेते हैं और पार्ट ऑफ द थिंग्स को छोड़ देते हैं, इसके बारे में कुरान खुद ही नक्शा खींचता है कि दूसरी कौमों के बारे में, जो पहले के कौम थे, कि वो कुछ चीजों को तो अपना लेते थे और कुछ चीजों को छोड़ देते थे। और सूर्य बकरा में भी ये कहा गया कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आपको ऐसे ही दीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है तो आप किसी ऐसे स्टेट में चले जाएं जहां पर आपको लगता है कि दीन पूरे के पूरे तरीके से जो है वो मुकम्मल तरीके से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं भाई, पूरे मुल्क में कहीं पर भी आपको, पूरी दुनिया में कहीं पर भी दीन सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। आप उसको बना करके भी दिखा नहीं सके पहले, जब आपने पार्टीशन किया, इसी बात पर पार्टीशन किया कि भाई हम स्टेट बनाएंगे इस्लाम के नाम पर। जो, लेकिन रवैया गलत था, तरीक़ेकार गलत था, आपने गलत तरीके से इस्लाम को समझा। आप मदीना से मक्का की तरफ वापस जा रहे हैं, आपको मक्का से मदीना की तरफ आना था, लेकिन आपने उल्टा जो है रवैया अख्तियार कर लिया। सारे के सारे फिक़ा जो लिखे गए हैं वो सब जब इस्लामी हुकूमत थी तब लिखे गए हैं, और ये लोग समझते हैं कि हम उनको यहाँ बैठ करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीजें, अब जैसा कि अभी आमिना ने कहा कि औरतों के साथ सबसे ज्यादा इनजस्टिस होती है। आज आप किसी भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं या बड़े बड़े इमाम उलमा हैं, उनसे जाके पूछें कि भाई मस्जिदों में औरतें नमाज क्यों नहीं पढ़ती? रसूल अल्लाह ने तो कभी पाबंदी नहीं लगाई। रसूल अल्लाह ने जो है उस वक्त में, आप बुखारी और मुस्लिम की हदीस पढ़ें, सारी औरतें जाके मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। और तो और अल्लाह के रसूल की तरफ से हदीस आती है कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसलिए नवाफिल जो है उसको घर में अदा किया करो। इसका मतलब साफ साफ है कि घर में औरतें नमाज नहीं पढ़ती, तभी बोला गया कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अगर औरतें घर में नमाज पढ़ रही होती तो घर कब्रिस्तान कब बन गया? घर में तो नमाज अदा की जा रही है ना। ठीक है। और बहुत सारी हदीस है आयशा से और दूसरे जो सहाबिया थी उनसे कि भाई सारी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। आप देखिए कि जो बैटल ऑफ कैमल हुआ था उसको लीड किया था हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ने। यानी अगर आप अल्लाह के रसूल की तालीमात पे जाके देखेंगी तो औरतों को बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी, जो इन लोगों ने खत्म कर दी। और इसी पर फिर जाहिर सी बात है, जो चीजें अल्लाह की तरफ से नहीं होंगी उस पर बवाल होगा, लोग आएंगे सामने, आगे बोलेंगे कि गलत है। और वही काम औरतें कर रही हैं, सही बोल रही हैं कि हाँ ये गलत है।
और कुछ लोगों को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया, उनको जबरदस्ती मनवा दिया गया है कि भाई जो सऊदी अरब का निकाला हुआ एक लिबास है काला वाला, वही आपके लिए सही है, और उसके अलावा जो घरों के अंदर जो है बच्चे पैदा करना और ये सारी चीजें जो है यही आपके लिए सही है, तो वो वैसा मान लेती हैं। लेकिन जो औरत भी अपने अकल का इस्तेमाल करके, कुरान में सबसे ज्यादा अकल के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, और फिक्र पर जोर दिया गया है, तो उससे तो ये बात साबित होती है। तीसरा जो आपने पूछा है कि दूसरे मुल्कों में, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यूएई है, देखिए इस्लाम जो है वो इंटरप्रिटेशन के हाथों जो है वो बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है तब्दील हो चुका है। यानी आज वो इस्लाम है ही नहीं जो रसूल अल्लाह के वक्त में था। तो हर एक मुल्क उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। सऊदी अरब में आप आज से 20 साल पहले जाके देखेंगे तो वहाँ का इस्लाम थोड़ा मुख्तलिफ था। आज मोहम्मद बिन सलमान आए हैं तो उन्होंने बहुत अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। और जैसी अथॉरिटी होती है उसी के हिसाब से उलमा भी इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। तो उसी तरीके से सऊदी अरब अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। आप इजिप्ट में जाएंगे तो वहां पर अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन मिलेगा। ईरान में जाएंगे तो चूंकि वो शिया मेजोरिटी है, उनका अपना अलग इंटरप्रिटेशन है। यूएई में जाएंगे उनका अपना अलग है। मलेशिया में जाएंगे उनका अपना अलग है। लेकिन वो लोग फिर भी बहुत ज्यादा लिबरल हैं, और बहुत ज्यादा जो चीजों को, बदलती हुई चीजें जो आज के दौर में आई हैं, जमाने के हिसाब से बदली हैं, उनको उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा मसला मैंने देखा है। यहाँ पर की जो अथॉरिटी है, जिन लोगों ने इस्लाम को अपना एक मतलब इस्तेमाल किया है अपने पावर के लिए, अपने 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 जो, जैसा कि अशराफ जिसको बोलते हैं, वो वो जो ऊपर की अथॉरिटी हैं, जो चाहते हैं कि भाई उनकी हुकूमत चलती रहे, तो उन लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्लाम को जो है अलग सोच, यानी पुरानी सोच से जोड़ करके रखा है, और लोगों को उस तरीके से ब्रेन वॉश किया। जी खालिद। I want to take this to Umar. Umar, when Muslims speak, their section of Muslims say कि yes, UCC is needed not only for our community specifically because least reforms हुए हैं, but for the nation in general. Counter argument to nahi, but there are a lot of people who throw accusations कि this is supporting the Hindutva narrative of targeting Muslims. And you know, this is an RSS conspiracy and these guys are backing that narrative. What is your counter argument? I mean, that's not an argument also, but how do you see that perspective playing out? Someone has said a very good thing, that when you are so much used to appeasement, then equality sounds like oppression. Basically, we are so much used to being pampered that when somebody is talking about equal rights, उसमें हमें oppression नजर आ रहा है basically. Who is, the point is, it does not matter at all who is raising the demand. हम किसी भी बात को इस चीज से नहीं तोल सकते कि वो आवाज कहां से उठ रही है। अगर मुझे एक आवाज सुनाई देती है that all women should have equal rights as men, मैं ये कभी भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करूंगा that where that voice is coming from. It doesn't matter. Wherever it is coming from, the argument is valid. The prospect has some value. So even today when we're talking about this prospect, I don't care where the voice is coming from. Okay, I will have disagreements for on from those forces on some other things, perhaps. अगर किसी का कोई agenda है उसके पीछे, I will be going against that agenda. I will be raising my voice against that agenda, whether it's a regressive agenda, whether it is communal agenda, whether it is talking about some sort of incitement or provocation against any community. So of course I'll be talking against that. लेकिन किसी भी चीज को हम सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये इंसान बोल रहा है या ये इस कॉर्नर से आवाज आ रही है. When I talk about why did I say we are pampered, of course a lot of people will get riled up at this word that bhai hum to, of course we are oppressed since the partition, so how can you say we are pampered? That's another extreme. But the point is that ever since partition, when we see that we were given this personal law, right, then there are the minority welfare schemes in a secular country, right? There are minority institutions. There is sorry, yeah, He said we have Waqf Board, Minority Commission, and Waqf board all is those it is the highest yeah, exactly highest landowner after army and railways. Where did it come from? Where did it come from? What sort of an oppressed minority we are? But we have to think about before saying certain statements. So then there is the Shahbanu happens. The whole the majority community, the whole infrastructure, the whole government bows down to you, literally bows down to you, bends over backwards for you, because you have certain funny beliefs in your head, right?
then this whole CAA thing happens, and then again there is a controversy on that. Then Waqf board की हम बात कर रहे हैं, minority welfare schemes हैं, minority institutions हैं, there are what not. So we have to think about that what sort of oppressed minority we are. तो हमें क्योंकि आदत इन सब चीजों की है to get whatever we want, to be in a very convenient position. So now when somebody is talking about equal rights, कि भाई when you are in this country, at least we should have equal laws. I think law is the basic principle of equality. अगर हम बात करते हैं equality between men and women, we are not talking about कि घर का काम कौन करेगा और बाहर जाके जॉब कौन करेगा. That is not what we're talking about, right? The first wave of feminism started as equal rights by law. That is what is the definition of equality. So अगर हम equality by law पर ही agree नहीं कर पा रहे हैं, then what sort of equality do we want in this country at the same time, right? So we have to be very clear कि हमारी जो sentences हैं, they don't contradict each other. On one hand, we are the upholders of secularism. For example, when the CAA comes, when the CAA is announced, then suddenly we are upholders of secularism, right? When UCC is announced, then suddenly the secularism is oppressing me by taking away my rights. So ये जो contradiction हमारी तरफ से जा रहा है, this is not giving a very good image of us. So and we should be very careful कि ये contradictions हमारे ना सामने आए, and we have to have a very clear understanding of where we stand on in principle. So that is what I have to say. Thank you. Amber, want to get a perspective from you. You're from the Shia community. Is there less resistance amongst the Shia community? And by the way, All India Muslim Personal Law Board Sunni also says that they represent you, which is funny. So is there less resistance from the Shia voices, prominent voices? Absolutely, yes, comparatively it's less. And I want to question, sorry, I want to answer the question which you have asked, Umar Ghazi. You asked that is it a BJP RSS agenda? The people who are saying that it is Uniform Civil Code is a BJP RSS agenda, they are purely against constitution, because Article 44 Directive Principle says that a state should have Uniform Civil Code. If you say that Uniform Civil Code is a BJP RSS agenda, you are going anti constitution, because we are enjoying everything, as Umar said, that Waqf board and minority scheme, minority welfare, or that what do you say, that and the commission and everything we are enjoying in the name of constitution. We have a CRPC, we have tax laws, unified, everything which suits our agenda, which suit and which is convenient. We enjoy that. And when it comes to our special privileges, we don't want to let them, we don't want that it is by are we giving up on that, or is it being taken away from us? Because it is for a long time to Muslim community of this country, it is being spoon feeded that we are oppressed minority in this country. बहुत जुल्म हुआ है. In everything we believe that जुल्म हो रहा है. When it you talk about triple talaq, you talk about anything, जुल्म हो रहा है. That is the basic mindset of a common Muslim of this country, be it Shia, Sunni, or irrespective. So we have to grow above that victim mindset. We are equally and a citizen of this country, as we enjoy equal rights and a uniform set of laws in IPC and tax laws and everything. When it comes to personal laws, when I don't know why we become a victim of everything, and that Islam is being attacked, Muslim are being humiliated. We have to accept that it is a part of constitution, and we can't we cannot allow subjugation of women in the name of diversity, or to have different set of law. Not anymore. Women of this country are voicing out their opinion, and they are coming out in big numbers. Like we have three Muslim women on this panel, and we are strongly opposing that idea of inequality in India. India is the largest secular democratic republic of this country, and being that, we still haven't got the equal right as other women of this country are getting. So why this injustice against women? As Amna said, and we repeatedly have been saying that largely Muslim women and children are being affected by these personal laws and primitive set of laws. So not anymore.
we all deserve equal rights, and we all should unanimously and unitedly should come out in support of Uniform Civil Code. Zeba, wanting to go to you and understand, it's very weird, and after Zeba, anybody else could also jump into this. Polygamy, जिसको ये कह रहे हैं कि that's also our right. Okay, now it is very less amongst the Indian Muslim. Like average Indian Muslim में, मतलब if like when I see my own reality, whether I see it, Let it be. I don't know anyone in my extended family from both sides who has indulged in polygamy. So jab numbers by the very practicing Muslims बहुत minuscule, and maybe Amna can come in with the numbers and kitna kam hai, like how many of us in our families, cousins, extended family, 100 200 people we know, I don't know anyone, right? Yes, So already by practice to Indian Muslim उस चीज को नकार चुका है, तो फिर ये इतनी क्या हरदर्मी है कि नहीं उसको भी बचाना है और निकाह हलाला को भी बचाना है, हलाला which is a disgusting practice at the end. Again, very less few cases that you can see. So television by raising hand like this, Ya Allah, it was Bakra Eid. या अल्लाह हर एक मुसलमान को ये हिदायत दे कि वो हलाला पे, हमें हलाला पे फक्र है, हमें ट्रिपल तलाक पे फक्र है, हमें 4 शादी पे फक्र है. हर कौन बोल रहा था? Majid Hydari from Kashmir, he was raising hand like that like we pray, and on television repeatedly he was saying हमें हलाला पे फक्र है, हमें 4 शादी पे फक्र है, हर एक मुसलमान को ये तौफीक दे कि वो 4 शादी करे, 4 निकाह करे. Oh my God, so shameless he is. औरतें कहाँ से आएंगी इतनी? I just actually want to open this to anyone. I told you, like both from my father's and mother's side, 100 200 जितने होते हैं. At least he should. I don't know anyone ask, जिसने दूसरी शादी भी की है. Like having the first wife and second wife. Do you guys have anyone in your family? So at least he should ask if even 4 women are ready to marry him also before raising that demand. Yeah, and I was thinking कि इतनी औरतें हैं कहाँ से आएंगी सब कुछ? नहीं, अगर हैं भी तो I don't think they are after him. अगर हैं भी तो. Obviously. So I want all of you to answer this. Do you know anyone? नहीं, मेरे पूरे दोनों साइड के खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लस मेरे खानदान में एक चीज और भी है, like we don't even do the cousin marriage, स्पेशली मेरे दादा के साइड में. एंड आई वाज लाइक, हमेशा उनको बोला गया कि ये भाई है, विच इज लाइक नॉट द केस इन अदर मतलब कम्युनिटी में. एक मेरे ननिहाल के साइड में एक लाइक दूर के कजन में एक मेरे मामू की शादी हो गई है, तो दैट वाज लाइक अ टैबू, दे वर नॉट गेटिंग अग्री टू इट. बट चलो वो हो गया किसी तरह से. बट जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये हिंदू कल्चर का इन्फ्लुएंस है कि वेयर यू हैव टू सी योर कजन एज अ ब्रदर एज सिस्टर एज वेल. तो मुझे तो बिल्कुल नहीं याद है दूर दूर तक जहाँ पे पॉलीगैमी कहीं मैंने देखी हो. Zeba, have you seen it in your lived reality, polygamy amongst your family? No, I haven't seen anywhere. Like neither do I have seen in my family nor in my relatives or any extended or any classmates of mine. तो the irony यहाँ ताहिर ये है कि जब 99.99% Indian Muslim males have not gone for polygamy, right? तो उसमें जब ये organizations कह रहे हैं कि ये भी हम पे बहुत बड़ा एक जुल्म है, तो क्या वो practicing Muslims भी अब practicing Muslim enough नहीं है? Exactly, जब ये चीज इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है और सदियों से हमने देखा है कि नहीं हो रहा है, और हमारे अपनी कम्युनिटी में नहीं हो रहा है और कर भी नहीं सकते आप. मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी वाइफ मुझे छोड़ेगी नहीं अगर मैं ऐसे कोई तो आप खुद नहीं करते. That is why violation of human rights हो जाएगा आपके साथ. लेकिन आप ताहिर के वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं देख रहे कि वो नहीं कर पा रहे. बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. एक चीज ये कहना चाहूंगा खालिद कि जो पॉलीगेमी के वर्सेस है ना कुरान में, वो कंडीशनल है. वो वहां पर क्या हुआ था कि बहुत सारी जंगें हुई थी और बहुत सारी औरतें जो है वो विधवा हो गई थी, उनकी बच्चियां जो है वो यतीम हो गई थी, तो उनके साथ परवरिश का मसला हो रहा था. उसके एवज में सूरह निसा के अंदर में बादाब्ते वहां पर यतामा के अल्फाज आते हैं, कोई भी जाके पढ़ ले, और उसका जो पर्सपेक्टिव भी बताया गया है वहां पर, उसके से आपको सबाक में जाके आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल वाजे है कि वहां पर ये कंडीशन आई थी. उसके बारे में ये कहा गया कि अगर तुम्हारी सलाहियत है तो अपने पसंद के मुताबिक अगर 2 कर सकते हो तो 2 कर लो, अगर 3 कर सकते हो तो 3 या 4. ये बातें वहां पर रखी गई, लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड नहीं बना दिया गया कि बस हर आदमी चाहे तो बस वो 4 4 4 शादियां करता फिरे.
ये बाद के लोगों ने इसको ऐसा बना करके, चूंकि वो हुकूमत आ गई थी, मुल्कियत आ गई थी, राजा महाराजा होते थे, तो वो अपने अय्याशी के लिए इस चीज को इस्तेमाल करते रहे और उसको जो है हमेशा के लिए कानून बना के छोड़ दिया। और बाद के जो उलमा हैं उन्होंने उसी शरीयत को जो है इस्लाम समझ करके लोगों को बता दी। बहुत सारी बातें कुरान में जो है ना वो उस वक्त के हिसाब से आई हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहली बार जब आप सूरह बकरा पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का अल्फाज जब पहली बार आता है तो वहां पर यह कहा गया है कि रसूल के सामने रायना ना कहो, उनजर ना कहो। दोनों लफ्ज अरबी के हैं, उसके अलग अलग मायने होते हैं। अब ये बात आप हमेशा के लिए तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना। जब रसूल मौजूद थे, उस वक्त के लिए उतरा था, वहां के लोग आकर के कुछ इस तरह की बातें करते थे जिसके एवज में ये बात उतारी गई। तो उसी तरीके से बड़ी सारी चीजें कंडीशंस पे हुई हैं। आप जो फतेह मक्का हुआ है उसके ऊपर सूरह फतह के अंदर जो है आयत आई है। अब मक्का जो है वो तो फतह हो गया ना, बार बार तो फतह नहीं हो रहा है कि आप बार बार उस आयत को लाओ। असहाबे फील का जिक्र आता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि असहाबिल फील। तो एक जमाने में कोई हाथी वाले लोग आए थे मक्का पे अटैक करने के लिए, तो उनके बारे में वो सारी चीजें हमारे लिए बस एक बात है, एक स्टोरी है जो हमारे लिए हम उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम शरीयत और कानून बना के नहीं रख सकते हैं। वहां पर यतीम के अल्फाज हैं, साफ साफ कहा गया है, आप उसको आम औरतों पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं? तो अगर बिल्कुल सही तरीके से चीजों को देखा जाए, सोचा जाए, तो बातें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन इन लोगों ने हुकूमत, जो हुक्मरान थे, उनके इशारों पर इन सब चीजों को ऐसा बना के पेश किया जहां पर बहुत ज्यादा औरतों के ऊपर जुल्म ज्यादती हुई है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी औरत नहीं पसंद करती कि उसका शौहर दूसरी शादी करे, और कोई भी शौहर भी नहीं पसंद करेगा कि उसकी औरत उसके उसके रहते हुए किसी दूसरे के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाए या शादी करे। तो ये मामला बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक इंसान है तो वो एक के साथ ही शादी करे और शादी करके उसके साथ जिंदगी गुजारे। मेरे हिसाब से यही एक बेहतर तरीका है, और यूसीसी के हिसाब से भी यही तरीका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो जुल्म ज्यादती मुसलमान औरतों के ऊपर हो रही है उसको खत्म करना चाहिए। Right. एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी जो ताहिर बोल रहे थे उसी में, कि एक इंसिडेंट आप देखेंगे कि जैसे कहा जाता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट देना चाहिए, बट एक अंदर खलीफा के अंदर ऐसा हुआ था कि सूखा पड़ गया था, फेमाइन आ गया था, तो लोग उस वक्त काफी भूखे थे, भूख से मर रहे थे। तो उन्होंने चोरी करना स्टार्ट की, तो ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बिकॉज कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल चेंज हो चुका था, वहां लोग मर रहे थे बिना खाए पिए, इसलिए चोरी कर रहे थे, तो खलीफा ने वो हटा दिया लॉ, बोले कि ये लॉ नहीं अप्लाई होगा। तो जब इस तरह के हम इंसिडेंट ऑलरेडी देखते हैं जहां आपको अपना खुद का दिमाग और अक्ल लगाने की बात की गई है, तो आई डोंट नो ये लोग क्यों इतना जिद पे अड़े हुए हैं। तो बस मुझे लगा कि आई शुड टेल दिस। This is an open question, whoever wants to take it. हम बाकी कम्युनिटीज में इतना रेजिस्टेंस क्यों नहीं देख रहे हैं? जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदूज है 140 करोड़ में, आई एम जस्ट टेकिंग अप्रोक्सीमेट फिगर्स, 100 करोड़ हिंदूज है। सेकंड हाईएस्ट जो कि खुद को माइनॉरिटी कहती है 20 करोड़ इंडियन मुस्लिम्स, 25 भी हो सकते हैं, we'll get to know that with Christians 5 crores, again Sikhs 5 crores, Buddhists again in crores, 1,000 Parsis, Jews, तो we're talking about 7 major world faiths, इससे और तो है नहीं। बाकी कम्युनिटीज के लोगों से इतना रेजिस्टेंस क्यों नहीं आ रहा? तो who wants Can to I take go it? first? Can I go first? Sure, उसका Zeba. जब Sorry, Amber, Zeba So, and then Amber. Muslim personal laws have largely remained unchanged by parliamentary legislation, whereas Parsis, Christian laws have undergone legislative modification over the period of decades, and Hindu laws have significantly transformed through the laws that were enacted post-independence. So this is something that has also been agreed upon by, Justice Sujata Manohar, who is a retired judge of the Supreme Court of India. So it is important to note that Sikhs, Jain, and Buddhist are governed by Hindu personal laws. And though it has sacramental origins, these laws have been secularized. Interestingly, when the Supreme Court was invited to declare certain aspects of Muslim personal law, such as polygamy, to be void under the right to equality, the court refused to do so, stating that these issues were fit to be dealt by the legislature and not by the courts. And one needs to understand that there has been a lack of political will on behalf of the Congress government in extending the same proactiveness in modifying the Muslim personal law, which is to be adopted in its approach with the other religious domination. And it is due to this beneficial treatment that was meted out to the Muslim community that they are the only ones who are vocal in the opposition of the UCC. That is what I believe. Alright. Amber, आप इससे कुछ जोड़ना चाहते हैं कि बाकी 5 मेजर कम्युनिटीज से तो कोई ऐसी मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही?
जेबा ने काफी कुछ कह दिया जो मैं कहना चाह रही थी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जब हिंदू कोड बिल लाया गया एंड वो एक बड़े जो लार्जर कम्युनिटी थी उसके ऊपर इन्फोर्स किया गया, उस वक्त भी आई डोंट थिंक दैट हिंदू majority was ready at that time, and it was forcefully imposed on largest community of this country. और वो आज उसपे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, इनफैक्ट दैट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग इनहेरिटेंस टू गर्ल चाइल्ड। तो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, ऐसा नहीं कि दैट वाज सैक्रोसैंक्ट, इट वाज परफेक्ट, बट इट हैज बीन रिफॉर्म्ड मेनी मेनी टाइम्स. But it was informed, and when people say that Muslim community, we are not ready yet, it should be debated for uh, one more decade, and we should have more time, and you should invite the people and leader from our community, and religious leaders should be invited. Why? We are living in a democratic setup, and supposedly state ensures equal right to the citizen of the country. Why should we go to or a government or a state or law commission should invite quote unquote that all India Muslim Personal Law Board and other religious scholar or leaders? They have said you can send your suggestions or whatever you want to convey to the 22nd Law Commission of this country. I went to the chairman of this Rituraj Avasthi, we have submitted our suggestion. If you want to submit your suggestion, if you have something in your mind, and we all know that it's not something related to religion, it's not uniform religion code. It is uniform civil code. There are a lot of myths around it because people are being instigated by saying, all those funny myths. So let's not get into this false propaganda. It is for our betterment, especially women and children of Muslim community. As Zeba said, the other community, they have codified laws, and because nothing on the larger front is going to change for them. Whatever is largely going to affect is for good, of course. It's going to affect only Muslim women of the country. Right. I would want to add Sure. on the same question. Actually, the problem is a lot of clergy of our community engages in a lot of fear mongering. ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमें मिटा दिया जाएगा, कुछ टाइम में सारे लोग एक से कपड़े पहन रहे होंगे और हमारा वजूद दुनिया से मिटा दिया जाएगा. दैट काइंड ऑफ थिंग इज एक्सप्लिसिटली सेड बाय सम ऑफ आवर लीडर्स. दैट इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट द केस विद एग्जैक्टली व्हिच इज नॉट द केस विद अदर कम्युनिटीज. इस कंट्री की खास बात यह है कि यहाँ कभी कोई मिटाया नहीं जाता, यहाँ कभी कोई खत्म नहीं होता, बल्कि फ्लरिश होता है. ठीक है, इंडिक फेथ्स, चलो इंडिक फेथ्स को हम मान सकते हैं, जैन, सिख, बौद्ध धर्म, बट पारसीज केम हियर इन 8th century. ठीक है, उस टाइम पे कोई डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं था, कोई मॉडर्न सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारा कोई UDHR नहीं था, यूनाइटेड नेशंस नहीं था, जेनेवा कन्वेंशंस नहीं थे. दैट वाज अ टाइनी माइनॉरिटी दैट हैड कम हियर जस्ट फॉर सेविंग देयर लाइव्स, right? And they not only survived, they thrived for centuries and centuries. And even today they are very few in numbers, but they are doing so good, better than a lot of other communities. They are contributing to nation building through economy, to everything. So that if agar khatam hona hota, so that would have happened long ago, but that is not the case. So that is the kind of thing that we have to understand, that something is basically wrong intrinsically with our clergy. So ये जो fear mongering है, ये a lot of it is only in our head, and we have to come out of it, and other communities have sort of understood it, and we also have to understand it. I want to so I'll come to you, Tahir. I'll just मैं come to you. कहूंगा कि can I? Yeah, please. मैं कहूंगा कि बचपने की ब्रेन वॉशिंग जितनी ज्यादा हमारे कम्युनिटी में की जाती है, दूसरी किसी कम्युनिटी में नहीं की जाती. एक ही बात सिखाया जाता है कि बस मुस्लिम है तो अच्छा है और गैर मुस्लिम है तो अच्छा नहीं है. मोहब्बत करना नहीं सिखाया जाता इंसान बना करके. हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से कि भाई इंसान बनाए. साहिर लुधियानवी साहब का जो गाना है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा,
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बन के एक दूसरे से मोहब्बत करें तो आपको पता चलेगा कि इंसान खूबसूरत होता है, सिर्फ मुसलमान खूबसूरत नहीं होता है या सिर्फ हिंदू खूबसूरत नहीं होता है। खैर दूसरी कौमों में तो ये बात नहीं सिखाई जाती, लेकिन हमारे यहाँ पर जो बचपन की ब्रेन वॉशिंग है ना, वो बहुत ज्यादा काम करती है। और जैसे जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं, ये तो हमारा अपना स्ट्रगल है कि हम इससे बाहर निकलें, इस ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकलें। हम में से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम अपने स्ट्रगल से बाहर निकलें। लेकिन जो कम्युनिटी है वो कभी आपको नहीं चाहती है कि वो इस ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकलें। आप मस्जिद जाते हैं, वहां पर भी यही चीजें बोम्बार्ड की जाती हैं। आप मौलाना आपके पास आते हैं कुछ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, वहां पर भी यही बातें सिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि एक फिरका दूसरे फिरके से भी बहुत सख्त नफरत करता है। अगर सुन्नी है तो वो शिया से नफरत करता है, अगर शिया है तो वो सुन्नी से। सब एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, ये कहाँ है? आप ही बताओ ना। एक कम्युनिटी अपने अंदर में भी एक दूसरे को मुशरिक और काफिर बना के बैठी है, और हद से ज्यादा नफरत है आपस में। और ये चीजें जो बचपन से जो कंडीशनिंग करते हैं, जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उसका नतीजा है मेरे हिसाब से इससे रुकना चाहिए। जब तक हम इससे नहीं रुकेंगे तब तक हमारी कम्युनिटी कभी भी, वो हम कहते हैं ना कि पानी में तेल जो है ना, वो हमेशा तेल बन के ही रहेगी, वो कभी नहीं घुल पाएगी। जो पारसी कम्युनिटी की जब का जो एग्जाम्पल दिया अभी उमर भाई ने, वो वैसी कम्युनिटी नहीं है। वो लोग चीनी की तरह थे, वो आए तो यहाँ पर घुल गया, और लोगों के साथ कितना फायदा हुआ इस मुल्क को उन लोगों से। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कम्युनिटी और कितने बड़े पैमाने पर वो लोग सामने आए। मेहनत किया, इनके साथ मिलजुल करके रहे, अपने ही फेथ पे रहे, आज तक उन्होंने अपना फेथ नहीं छोड़ा। लेकिन वो इस कंट्री के बन के रहे, इस कंट्री के लोगों से मोहब्बत किया। वो हमारे कम्युनिटी में अभी तक मेजॉरिटी में जो है वो चीजें, जो जो उलमा है, जो इमाम है, वो उसको हमेशा से रोकने की कोशिश करते आए हैं, और, और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं इस चीज को। थैंक यू खालिद। ताहिर, ऑन अ लाइटर नोट ऐसी बात मत कीजिए। मौलाना खालिद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के, नॉट मी, मौलाना खालिद, we just happen to share the same name। वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो तकलीफ इस चीज से भी है कि ये यूसीसी विल आल्सो अफेक्ट हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन, जूस, पारसीज, और उनके भी और उन्होंने कुछ अजीब दलील दी है कि लैंग्वेज बदल जाती है, तो हर कम्युनिटी का एक अपना प्रे करने का, रिचुअल परफॉर्म करने का, सेरेमनी कंडक्ट करने का तरीका होता है, और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हम ना, मौलाना खालिद कह रहे हैं कि अगेन नॉट मी, कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस वन्स ओन फेथ ये छीन लेगा यूसीसी। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जो हम बात करते हैं कि राइट टू रिलीजन है, वो राइट टू रिलीजन इंडिविजुअल्स को है। एक इंडियन शहरी नागरिक को पूरी आजादी है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का, अपने मान्यताओं के हिसाब से जीने का। कलेक्टिवली किसी इंस्टीट्यूशन को उसका अधिकार नहीं दिया गया है, जो बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती हैं इम्प्लीमेंट करने का। किसी को भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बना के कि ये हमारा धर्म है, हम इस हिसाब से जिए कलेक्टिवली, ऐसा कोई राइट नहीं है। एक इंडिविजुअल्स को राइट है कि वो जैसे अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस करें। उसमें भी बाउंड्रीज है, सर्टेन बाउंड्रीज। ठीक है, पब्लिक पीस इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे तो ये, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलने लगे कि मेरा तो यही तरीका है कि सती करेंगे हम, ये हमारा कस्टम है और ये हमारा धर्म है, तो थोड़ी ना इंडियन स्टेट अलाउ कर देगी। बिकॉज इंडिविजुअल्स राइट भी तो आते हैं ना, ह्यूमन राइट्स भी तो आते हैं। सो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है वहां पे, इतना सिंपल नहीं है। तो एक चीज ये, दूसरी जो ये लोग बोलते हैं इनको सिंपल इंडिया के अंदर गोवा में देखना चाहिए ना। गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है, तो क्या गोवा के मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, गोवा के हिंदू हिंदू नहीं है, या वहां के जो अलग अलग लोग हैं उनकी पूरी कल्चर खत्म हो गया है क्या? सो वहीं पे ये लोग कितने बड़ा झूठ बोलते सामने आ जाता है कि विद इन इंडिया आप गोवा में देख सकते हैं, वहाँ यूसीसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। वहाँ के मुस्लिम अपना नमाज पढ़ते हैं, वहाँ के हिंदू अपना प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियंस अपना निभाते हैं। तो वो बात क्या कर रहे हैं? बेसिकली फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। ऑल्सो एक और कमी है, कमी बोल लीजिए, एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में एजुकेशन स्टैटिस्टिकली कम है कंपेयर टू अदर रिलीजियस ग्रुप के। तो बहुत ज्यादा इजी भी होता है उनको बरगलाना। दूसरा, क्योंकि साउथ एशिया का ये एक हिस्ट्री रहा है कि हमारे लिए इस्लाम क्या है, हमारा हमारी ये मदर टंग नहीं है अरबिक, तो हमारे लिए हमेशा इस्लाम वही हुआ जो उलमाओं ने हमें बताया। कुरान हम डिसाइड करते हैं, हम कुरान को पढ़ के समझते भी नहीं है, टू बी वेरी फेयर। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम लोग जाते हैं और जो मौलवी बोलते हैं उनको लगता है यही इस्लाम है।
ऊपर से हमारे यहाँ मुर्शिद का भी कंसेप्ट है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इस्लाम में, ये यूनिक इंडिया में ही है, बट अपने मुर्शिद की बात को ही वो मानते हैं, जो उन्होंने कह दिया वही मतलब उनको लगता है कि ऊपर से अल्लाह का फरमान आया हुआ है। तो जो कंट्रोल है यहाँ पे रिलीजियस क्लर्जी का वो और ज्यादा पुख्ता हो जाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक इंडियन मुस्लिम खुद से नहीं समझ पाता है उन चीजों को, जो चीजें हैं उसको यहाँ तक नहीं समझ में आता कि शरिया अलग है, कुरान अलग है, हदीत अलग है, उसको बस पता है इस्लाम है। और कुछ बोल देगा, कोई बोल देगा कि चार शादी इस्लाम है, तो उसके लिए वो चार शादी इस्लाम है, भले उसे खुद प्रैक्टिस नहीं करनी है कभी ना, वो चाहता है कि उसके बच्चे के लिए प्रैक्टिस हो, बट क्योंकि ये इस्लाम है तो ये रहना चाहिए, ये हटाया नहीं जा सकता, किसी ने उसको समझा दिया है। तो जो खुद का दिमाग कहते हैं ना इस्तेमाल करना, जो कि कुरान में भी लिखा है कि अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, वो साउथ एशियन मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल बंद हो गए हैं उसके दरवाजे। और उसको कोई, ये जो क्लर्गी लोग हैं ये चाहते भी नहीं कि खुले, क्योंकि अगर वो खुलेगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। आपका इतना अच्छा लगा हुआ दुकान है जहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब कहते हैं ना धर्म का कारोबार सबसे अच्छा कारोबार होता है बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कोई क्यों चाहेगा उसको बंद करना। तो यहाँ पे ये फियर मॉन्गरिंग, ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही है। एंड जैसे ताहिर ने बोला, मैं मानती हूँ कि बचपन से एक तरह का माइंडसेट हमारे अंदर डाल दिया जाता है जिसमें हमें क्वेश्चंस करना, इंट्रोस्पेक्शन करना बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। तो वो ये कुछ चीजें मिला करके बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो ये खालिद साहब हैं, आप नहीं, ये जो मौलवी खालिद साहब हैं, ये लोग उसी पर प्ले करते हैं, ये वही कर रहे हैं वहां पे। सिंपल सा आंसर है, गोवा में देख लीजिए, सब लोग अपना धर्म अपना रहा है, यूसीसी वहां पर भी है, कोई बदला नहीं किसी और में। तो दैट्स योर आंसर। Yeah, Amber, you wanted to come? I said Uttarakhand ka draft is ready. Uttarakhand mein uniform civil code is going to be introduced, and draft is ready, and it's going to be submitted, and also it is being discussed in Gujarat also. So as it is it is said in constitution, it's a state level statute, and a state can also implement and introduce uniform civil code. But again, when it comes to equal rights, it is actually it is against the basics and the basic core values of constitution. So that's why we demand from a state government to introduce unified set of civil code or laws for everybody across the nation. So there's no ifs and buts, no confusion. It's just that we are going to have unified civil rights in marriage, divorce, maintenance, inheritance, succession, adoption, and maintenance of our parents. If like one of us, any of us get married and we die and we are single, so the responsibility of taking care of our parents goes to our spouse respectively. So that is also going to be introduced because we have submitted suggestion and our petition is also before the court. So largely 10 chapters are going to be introduced in this. Also, the polygamy going to be banned. So we are expecting. So there are. Sorry, Majid Hydari. I mean, I feel No, sympathies for Majid Hydari. This is oppression. He should leave India now. He should leave. इस जुल्म के बाद 72 रूरे या अल्लाह हर मुसलमान को 72 रूरे दे, आमीन। मौलाना खालिद जो बात कह रहे हैं कि हिंदू और जैन और सिख और पारसी लोग भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो उनके दिल में जो ये दर्द है अपने हिंदू भाइयों के लिए, जो इतने कन्वीनियंट टाइम पे बाहर आया है, वो एकदम आंख में आंसू आ गए हैं मेरी, कि उनके दिल में कितना प्यार है अपने हिंदू भाइयों के लिए। और ये मुझे इल्मी का इजहार खुद कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके लॉज कोडिफाइड है। हाँ, उनके लॉज कोडिफाइड हैं। और व्हेन ही सेइंग कि सबका प्रेयर करने का तरीका होता है, तो प्रेयर करने के तरीके में आपको कोई आपके घर में आपको प्रेयर करने से नहीं रोकने वाला है यूसीसी में। सो ही शुड अंडरस्टैंड दैट कि और ये मुझे वो याद आ गया जब सबरीमाला पे इशू चल रहा था, एंड दे वर सपोर्टिंग द राइट ऑफ हिंदू वुमेन, कि हम उनके साथ खड़े हैं उनके वो राइट्स के लिए, और हमारी हिंदू बहनें। तो मतलब आप मुस्लिम बहनें अगर पहले मस्जिद चली जाएं तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हिंदू बहनें क्या करना है वो हिंदू बहनें खुद देख लेंगी। अभी हमारी लड़ाई हिंदू बहनों के लिए नहीं है, अभी हमें अपनी बहनों को देखना है। सो वी शुड अपने घर पहले सफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम पड़ोस में जाएंगे। तो ये मौलाना खालिद से मेरा यही कहना है
कि ये जो दर्द आपका बाहर आ रहा है ये अपनी हिंदू मुसलमान बहनों के लिए भी आए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। मैं एक्चुअली उस चीज पे ऐड भी करना चाहता था कि इंडोनेशिया और मलेशिया में तो बहुत कॉमन है वुमेन एंड मेन गोइंग टू प्रे टुगेदर इन मॉस्क। Even Yes. in Saudi Arabia, in Haram Sharif, जी everybody prays together, like in एग्जैक्टली same. और इंडोनेशिया का खास मैं जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज वो लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है ना दुनिया की, तो वहां भी तो बहुत सारे मॉस्क हैं। यहाँ तो इंडिया में वो रूल है ही नहीं, बहुत सिलेक्ट मॉस्क है जहाँ वुमेन एंड मेन गो टुगेदर, मतलब यहाँ तो उल्टा यहाँ है। तो ऑल खालिद, इंडिया यहाँ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ खालिद, बोर्ड ने बोला है कि नहीं औरतें जा सकती। अच्छा बोलते अच्छा उन्होंने अब दे दिया है हमें राइट, ओके। Even खालिद यहाँ तो एम आई ऑडिबल? मैं हाँ कह जी रहा हाँ हूँ कि यहाँ तो अरफा को भी फोटो खिंचवानी होती है तो बाहर खड़ी होकर फोटो खिंचवाती हैं जामा मस्जिद के, वो राइट राइट देखा ना। एग्जैक्टली, इसीलिए तो कह रही थी कि सेकंड क्लास सिटीजन हो गई है लाइफ। आई वाज लाइक दैट्स ट्रू, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ द अदर कम्युनिटी। हाँ, बनाया किसी और ने, डाला किसी और पे जा रहा है। एग्जैक्टली। तो लास्टली गाइस वांट टू एक रैप चीज अप। खालिद, एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब ये सारी बातें होती है मुस्लिम विमेन के बारे में, हर तरह की बातें हम सुन लेते हैं, जो मुस्लिम विमेन का खुद का जो एक वॉइस है स्पेशली ऑर्डिनरी मुस्लिम वुमेन का, वो हम नहीं सुनते। एंड मैं बार बार बोलती हूँ कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने सर्वे किया है 10 स्टेट के अंदर, आप जाके प्लीज पढ़िए, मोर देन 92%, और वो औरतें ज्यादातर बिलो पॉवर्टी लाइन आती हैं जो सर्वे में शामिल हुई थी। 92% औरतों ने बोला है कि वो पॉलीगामी पे बैन चाहती हैं। तो मुस्लिम औरतें ऑलरेडी डिमांड कर रही हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कहाँ है मुस्लिम औरतों की वॉइस, तो उनको मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी PIL लगे हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो सारी मुस्लिम औरतों ने लगाया है। चाहे वो PIL ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट हो, हलाला के अगेंस्ट हो, वो सारी मुस्लिम महिलाओं ने लगाया। तो वो ऑलरेडी ये लड़ाई लड़ रही हैं। आपको वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आवाज सुनाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम औरतें नहीं लड़ रही हैं। तो ये एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी। I think you all spoke about what many of us Muslims are, feeling so much about it, and it's important that we put out a counter narrative and a counter argument to our radicals and conservatives and hypocrites. I also want to wrap it up in this sense, and I would want to go back to Tahir's thing. If you have such a wonderful country where 7 major world faiths not only exist but are celebrated, our faith has been here since 1,000 years. It's even before the Mughals. That's the history which is not taught, sadly. And so much so that the first mosque in India, which is a heritage site in Kerala, was built during the lifetime of the Holy Prophet. I don't know how many people know this. It needs to be said there. So, obviously, our lives here are Himalayanly better than Pakistan. How many ever those agents of Pakistan that you have here who are citizens of India but conviction say Pakistani hai? So let them not fool you. But I want to go back to a more mindset thing, which I want to wrap it up with Tahir saying that yes, it's your right to go and preach that your faith is also one of the faiths. तब तक ठीक है, लेकिन जब तक आप एज अ कौम ये माइंडसेट नहीं छोड़ेंगे कि नहीं सिर्फ वही ठीक है और बाकियों से सुपीरियर है, तो ज्यादातर आपकी कन्फ्रंटेशन हो रही है दुनिया से और आप दुनिया को गलत समझ रहे हैं। द मोमेंट यू से yes, there are 8 faiths which are all here in India, and there is no other country in the world where those 8 faiths have such imprint and such celebration. ये भी एक फैक्ट है। तो ऐसा क्यों है कि आपके क्लर्जी हमेशा आपको ही कन्फ्रंटेशन में रखते हैं? तो वो एक आई डोंट नो, गालिब का शायरी है कि पूरी उम्र गालिब शीशे को कोसता रहा और धूल चेहरे पे थी, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो I think it boils down to that. So even after all these legal reforms, unless and until you don't change in the mind, and it's a very simple change, but problem ये है ना कि reforms नहीं हुए तो ये भी बहुत बड़ा एक change लगता है कि ये कहना जैसे मेरा हक है, मेरी सेंसिटिविटी है मेरे फेथ को, ऐसे और 7 फेथ भी है and they don't agree with me and I don't agree. The moment an average Muslim thinks like that, I think mindset will change drastically. कि हाँ, उन्हें नहीं लगती मेरी फेथ सही, मुझे नहीं लगती, कोई सुपीरियर नहीं इंफीरियर है, एक नजरिया है। तो वो आई थिंक ताहिर, आई वुड लाइक टू लीव दैट विद दैट थॉट। जो सुपीरियरिटी का माइंडसेट है, जिसको फिर चाहे वो आरफा खान शेरवानी हो, राणा हो, वो तो एक्सप्लॉइट करने के लिए रहेंगे, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम विद इन है जिसको सॉल्व करना होगा। अगर हिंदू कम्युनिटी ने अंदर झांक के अपने इशू सॉल्व नहीं किए होते तो फिर आज वो वहां नहीं पहुंचती। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू लीव इट विद।
So thank you so much. I think this was an apt episode for episode 100. Thank you, Amber, for making your debut with us, and we hope to see you more often. And thank you, Umar. Thank you, Zeba. Thank you so much. Thank you, Thank you Tahir. for having me. It's always a pleasure. Thank Thanks a you. lot. And thank you, my co-host, Amna.